A very good morning, children. Today we will be doing your poem number 1 from your reader book. Children, this is a poem written by Sanchit Saluja. Sanchit Saluja is a budding poet who likes to express his thoughts and ideas through simple and interesting rhymes. यानी कि इसका मतलब है it is written here down. Sanchit Saluja is a budding poet. Budding. See, budding means जो bud होता है, बड यानी कि कली, फूल की कली को हम बड कहते हैं, राइट. बडिंग मीन्स उभरते हुए पोएट हैं वो, राइट. हु लाइक्स टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड आइडियाज थ्रू सिंपल एंड इंटरेस्टिंग राइम्स. दैट मीन्स ही लाइक्स टू पुट हिज आइडियाज एंड हिज थॉट्स इनटू simple rhymes for kids or for anybody else, but they are simple and interesting in their nature. Okay, so the poem is The Coming of Spring. As the title says, say children, it is talking about the coming of spring season. Spring season is the one wherein all the flowers bud and there is greenery everywhere, and the whole area where the spring season is there, the country, it looks very beautiful. Okay, let's read here. Before you read, do you know how many seasons do we experience in a year? Which season do you like the most? Okay, if we would have been in the class, I would have asked you all, which season do you like? In the following poem, the poet is expressing his joy at the arrival of spring season. What do we mean by arrival, children? Arrival means to come. When something comes, that means it has arrived. We say, for example, trains. We say the arrival time of train is 5 p.m. That means the train is going to reach here by 5 p.m. or arrive here by 5 p.m. See, arrival, A-R-R-I-V-A-L. This word has come from arrive, A-R-R-I-V-E. Okay? Alright. So the poem is talking about the arrival of spring season. Let's see what the poem says. It's a very simple poem, children. We will finish it off today itself. How do I know that spring is here? Because the world is full of happiness and cheer. Now, see children, the first line is a question. As you can see the question mark here. Now the author is asking, or maybe he's saying to himself, how do I know the spring is here? Or maybe this is a question that he's going to answer in this poem. Okay, so this is the question that author is going to answer here. So sometimes it happens ना कि आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा एंड आपने वो क्वेश्चन रिपीट किया एंड देन आपने उसका आंसर दिया. फॉर एग्जांपल, आपको क्या कौन सा रंग पसंद है, तो मे बी यू से आपको कौन सा रंग पसंद है. ओके, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है. और इफ़ इन इंग्लिश वी से, फॉर एग्जांपल, आई आस्क यू विच डिश डू यू लाइक द मोस्ट. सो देन यू रिपीट द क्वेश्चन, देन यू से विच डिश डू यू लाइक द मोस्ट. ओके, आई लाइक चाइनीज़ द मोस्ट. सो आपने वो क्वेश्चन रिपीट किया एंड देन आपने उसको आंसर किया. So same thing is happening here in the poem. So the poet is saying, how do I know the spring is here? मुझे कैसे पता चलेगा कि spring is here? That spring has come. That means because. Now he is answering, because I will know it because the world is full of happiness and cheer. Happiness हम सबको पता है children क्या होता है. Cheer का मतलब होता है खुशी. Cheer का मतलब भी happiness ही होता है. Alright. The beautiful roses, lilies and daffodils. Children, roses, lilies और daffodils 3 टाइप के फ्लावर्स का नेम है. ओके, हम सबको पता है रोजेस क्या होते हैं. रेड रोजेस होते हैं, येलो होते हैं, पिंक होते हैं. लिलीज भी एक टाइप का फ्लावर होता है और डैफोडिल भी एक टाइप का फ्लावर होता है. ओके, peep out of everyone's windows sills. Sill का क्या मतलब होता है children? There is a platform outside the window. Okay, suppose this is a window, so this platform which is outside the window
यहाँ पे हम कभी कभी पौधे रख देते हैं ना, प्लांट्स रख देते हैं, एंड देन वो बढ़ जाते हैं, एंड देन दे गो आउट ऑफ द विंडो लाइक दिस. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड अ सिल, SILL. ऑलराइट, ओके. Let's read once more time. How do I know the spring is here? Because the world is full of happiness and cheer. कि उसको कैसे पता चलता है that spring has come? क्योंकि वर्ल्ड में हैप्पीनेस और चीयर होती है. The beautiful roses, lilies and daffodils peep out of everyone's windowsills. This is one part and this is another part. So that means he says the first reason that he says कि मुझे क्यों पता चलता है, बिकॉज हैप्पीनेस और चीयर है पूरे वर्ल्ड में. सेकेंड रीज़न दैट इज़ गिविंग दैट ऑल द ब्यूटिफुल रोजेज, लिलीज एंड डैफोडिल्स दे पीप आउट ऑफ एवरीवन्स विंडो सिल्स. दैट मीन्स द फ्लावर्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग and they have grown so much that they are peeping out. peep out, peep का क्या मतलब होता है चिल्ड्रन? peep का मतलब होता है झांकना. okay, that the flowers have grown so much that they are peeping out, or the peep out of everyone windows. हर किसी के घर में जो फ्लावर्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि वो विंडो सिल के बाहर आने लगे हैं. ओके, या विंडो सिल से पीप करने लगे हैं, झांकने लगे हैं. The grass starts getting soft and green. यानी कि जो ग्रास है वो सॉफ्ट होने लगी है और ग्रीन होने लगी है. The garden makes a very pretty scene. And the garden makes a very pretty scene. Pretty का क्या मतलब है children? Pretty means beautiful or very pleasant. Okay, pleasant, you can write pleasant for pretty. Pleasant means जो आँखों को अच्छा लगे. Pleasant का मतलब होता है जो कि एक शांति की फीलिंग के साथ ब्यूटिफुल हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सी अ बुके ऑफ फ्लावर्स यू फील वेरी प्लेजेंट. आपको बहुत खुशी होती है, राइट? आपको देखने में वो चीज़ सुंदर लगती है और आपको बहुत खुशी होती है. सो दैट इज़ प्रिटी. ऑलराइट, सो द गार्डन मेक्स अ वेरी प्रिटी सीन. टॉल बुशेस ऑल स्टार्ट टू अनफोल्ड. टॉल बुशेस ऑल स्टार्ट टू अनफोल्ड, इसका क्या मतलब है? यानी कि जो लंबी लंबी बुशेस हैं वो अनफोल्ड होने लगती हैं. अनफोल्ड का मतलब क्या होता है? सी बुशेस होती हैं ना, छोटी छोटी होती हैं पहले, देन दे अनफोल्ड होती हैं, वो बड़ी होती है, फिर वो और बड़ी होती हैं, है ना? यानी कि उनकी पत्तियां खुलने लगती हैं और वो और बड़ी बड़ी बुशेस बनती जाती हैं. ऑलराइट, अनफोल्ड का मतलब है कि कुछ चीज़ छोटी है, अभी वो खुल रही है, ऐसे करके खुल रही है और बड़ी हो रही है. ओके, अनफोल्ड का मतलब ये होता है. And introduce the sun's morning serene gold. Tall bushes all start to unfold and introduce the sun's morning serene gold. इसका क्या मतलब हुआ चिल्ड्रन? इसका ये मतलब हुआ कि जो बुशेस हैं वो अब ग्रो कर रही हैं, बड़ी हो रही हैं, और इंट्रोड्यूस सन्स मॉर्निंग serene gold. और इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोड्यूस मतलब बताना. ओके, बताने का इंट्रोड्यूस का मतलब होता है जैसे कि दो अनजान लोग मिलते हैं, दो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ दैट हाय आई एम अनुकृति और हाय आई एम दिस वन, दैट्स माय नेम. ऑलराइट, इंट्रोड्यूस द सन्स मॉर्निंग सरीन गोल्ड. इस मॉर्निंग सरीन गोल्ड का क्या मतलब है चिल्ड्रन? स्प्रिंग में ना देयर इज़ ब्राइट सनलाइट. ओके, द सन इज़ वेरी ब्राइट. तो जो मॉर्निंग में सन होता है, मॉर्निंग में सन का जो लाइट होता है वो गोल्डन कलर का होता है. उसको हम कहते हैं गोल्डन आवर. चिल्ड्रन, गोल्डन आवर 2 टाइम होता है एक दिन में. फर्स्ट होता है जब सन राइज करता है उसके जस्ट बाद. फॉर एग्जांपल, अभी सन राइज कर रहा है, इट विल बी रेड इन कलर, बट जब वो ऑलमोस्ट येलो टर्न होने वाला होगा, उससे जस्ट पहले देयर विल बी सम टाइम, मे बी हाफ एन आवर, व्हेन द सनलाइट विल बी गोल्डन इन कलर. एंड द सेम हैपन्स इन द इवनिंग. ओके, एंड द सेकेंड हैपन्स इन द इवनिंग. जब सन सेट होने वाला होता है, जब वो येलो से रेड होने वाला होता है, तब मे बी हाफ एन आवर के लिए सन की जो लाइट होती है वो गोल्डन कलर की दिखाई देती है. दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड सेरीन गोल्ड हियर. ओके, सो दैट मीन्स जो टॉल बुशेस हैं वो मॉर्निंग में अनफोल्ड होती हैं
जो कि रात में क्लोज हो चुकी होती हैं वो मॉर्निंग में अनफोल्ड होती हैं एंड वो मॉर्निंग के सरीन गोल्ड सनलाइट को हम सबको इंट्रोड्यूस करती हैं। ऐसा लगता है कि बुशेस अनफोल्ड हो रही हैं और हमको एक गोल्डन लाइट दे रही हैं, जस्ट लाइक द सन। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द पोएम हियर and let's see the exercises here. Children, I request all of you to please listen to it one more time. आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है. Let's do the exercises here. All the word meanings are given here. Okay, these are very important. आपको याद करने ही हैं. Serene gold, the golden yellow light of the sun. All right. Comprehension. चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है चिल्ड्रन। व्हाट इज़ द फीलिंग इन द वर्ल्ड ऑन अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन? दैट मीन्स कि व्हाट इज़ द फीलिंग, व्हाट फीलिंग, कौन सी फीलिंग है इन द वर्ल्ड ऑन अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन? सैडनेस है, एंगर है, हैप्पीनेस है या फियर है? हमने पढ़ा था फर्स्ट लाइन में ही कि हैप्पीनेस है, so happiness will be the correct answer. Which flowers has poet mentioned in the poem? कौन से flowers को mention किया है? Children, ये आप बताएंगे. Very simple. This question is very simple. How does the garden look during the spring season? Garden कैसा दिखता है spring season के time? Pretty दिखता है, dirty दिखता है, terrible या unclean? बहुत simple question था children. You will do on your own. Later I will share you answers for everyone. Okay, मैं सारे आंसर्स शेयर करूँगी आपके साथ, बट पहले आपको करके दिखाना होगा. फोर्थ वन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज द सन्स मॉर्निंग सरीन गोल्ड? पोएट का इस फ्रेज से क्या मतलब है? चिल्ड्रन, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मीन समथिंग but it is not a complete sentence. Okay, it is a half sentence. A phrase is a half sentence. All right. और मे बी जिसे हम मुहावरा कहते हैं, मुहावरा तो इस इडियम, बट फ्रेज इज़ अ कहावत. कहावत के तौर पे आप इसको ले सकते हैं. यू कैन कॉल इट कहावत. इससे क्या मतलब है सन्स मॉर्निंग सरीन गोल्ड से? इसका मतलब है ये द गोल्डन येलो लाइट ऑफ द सन इन द मॉर्निंग. चिल्ड्रन, ये इसका आंसर आपको वर्ड मीनिंग में भी दिया हुआ है. सी हियर, लुक हियर, ये मतलब है इसका. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इन कॉम्प्रिहेंशन ए पार्ट. ओके, कॉम्प्रिहेंशन बी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. How does the poet know that the spring has arrived? Children, जो सेकेंड लाइन है ना, वो है इसका आंसर. Because there is happiness and cheer all around the world, and that is how the poet knows that the spring has arrived. Second question, what do the beautiful flowers do in the spring season? जो लाइन था ना जिसमें लिखा था peep out of everyone's window sills, that line is the answer for this question, because all the flowers peep out of everyone's window sills. They overgrow and they peep out of everyone's window sills. Third one, what happens to the grass? The grass becomes green and soft. Fourth one, how do the tall bushes announce the arrival of spring season? The tall bushes announce का क्या मतलब होता है? अनाउंस का मतलब होता है अनाउंसमेंट करना, सबको बता देना. दैट इज अनाउंसमेंट. ओके, टू टेल एवरीवन. द टॉल बुशेस अनाउंस द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन बाय इंट्रोड्यूसिंग the sun's morning serene gold सनलाइट. ओके, ये है इसका आंसर. चिल्ड्रन, हम इतना ही करेंगे इस पोएम में, हम इसके आगे नहीं करेंगे.
आई जस्ट वॉन्ट कि आप ये पढ़ें, ये आप पढ़ लें एक बारी। ऑलराइट, आप इसको पढ़ लें एक बारी और समझ लें। नहीं समझ में आता है, you can ask me, and that is it for today's class. If any confusion, you can please ask me. Thank you so much, children. Have a nice day.